ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਬੰਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਸ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬੀਕਾਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ +2 ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਮਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੌਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਮਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹਰਲੀਨ ਪਰਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਨੇ 12th ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਨੇ 10th। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਨੇ ਹੁਣ 92% ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ 10th ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਔਰ ਸਟਾਫ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ, ਟੀਚਰ ਮੈਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੜੀ ਬੱਚੀ ਚਲ ਗਈ +2 ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਉਹਦੀ 10th ਚੋਂ 93-92% ਹੋਈ ਆ ਪਾਸ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ CA ਕਰੂਗੇ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ CA ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਹਲੇ 10th ਹਲੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ +1 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਨੀਨਾ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ? My name is Nurani Singh and I studied in class 12th. My parents' name is, my father's name is Mr. Manjeet Singh and my mother's name is Mrs. Sweetie Rani. And I scored 95% in class 12th CBSE board examination. ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? जो मेरा टाइम टेबल था वो बहुत ज़्यादा जो कि रिग्रेस नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा एक सिंपल टाइम टेबल फॉलो किया है। आई यूज़ टू सेल्फ स्टडी अलॉट एंड ज़्यादातर जो मैंने सेल्फ स्टडी किया उसकी वजह से जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और मेरे टीचर्स की सपोर्ट की वजह से जो है मेरे इतने मार्क्स आ पाए। नो, मैं कोई ट्यूशन नहीं लेती थी। मैं ज़्यादातर जो मेरे टीचर्स पढ़ाते थे वही मैं घर पे रिवाइज करती थी और उसकी रिटन प्रैक्टिस करती थी। मेरा लाइफ में यही गोल है कि मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाहती हूँ। मैं कुछ बड़ी पोस्ट पे जाना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स का जो है नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने टीचर्स को प्राउड करना चाहती हूँ। मैं अपने टीचर्स को यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। उनको हमेशा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं और पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए।
ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ? My name is Harsharan Kaur and I have passed CBSE board examinations of class 10th with 95%. My parents and teachers were the constant support throughout my journey. टीचर्स ने भी बहुत जो है अच्छे से हमें पढ़ाया गया स्कूल में, जहाँ पे भी हमें डाउट आता था हमारी हेल्प करी गई, और पेरेंट्स ने भी मतलब हर टाइम पे हमें सपोर्ट किया और जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए थे वो प्रोवाइड किए। I want to achieve something big and make the name of my parents brighter. क्लास ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? My name is Harleen Parmar and I have scored 93% in class 10 CBSE board exams. What is the goal for you? एंड मेरा यही गोल है कि मैंने कुछ बिग अचीव करूं और मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊं। अपने जूनियर स्टूडेंट्स को कुछ सलाह दोगे चंगे नंबर लेके? कि मतलब पूरा हार्ड वर्क करें और मोटिवेट रहें अपने स्टडीज के रिगार्डिंग, मतलब मोटिवेशन उनका कम ना हो और पूरा हार्ड वर्क करें। माय नेम इज़ आशिमा सैनी और मैंने क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस में 90% हासिल किया है, और मेरी लाइफ का गोल यही है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, अपने टीचर्स को, और गोल ऑफ योर लाइफ? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा काम करूँ जिससे सबको हेल्प भी मिले। मैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती हूँ। My name is Sanj Bhargav and I have scored 85% in my class 12th board examination. Well, I wanted to be an entrepreneur. I wanted to do social services as I wanted to serve the nation. So that's my goal. Well, I have seen there is a trend of doing study from YouTube, coachings and tuition. I have scored good marks without such things. So I think they should stick to self-study and listen attentively to their class teachers. My name is Alisha Roop Rai. I'm from class plus 2. I scored 85%. What is your goal in life? My goal is I want to become an accountant. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 78 ਟੀਵੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਡੈਰਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਬੰਗਾ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ CBSE ਬੋਰਡ 10th ਐਂਡ 10+2 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਔਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੈਰਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 95% ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਸਕੂਲ मैडम नीना भारद्वाज जी। मैडम जी स्वागत है थोड़ा। क्या कहेंगे आप, जैसे कि 10+2 के और 10th के रिजल्ट आए CBSE बोर्ड के, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि मेरे बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेके वो सक्सेसफुल हुए हैं। 12th कॉमर्स में भी हाईएस्ट 95% है और मेरे 10th के बच्चे के भी 95% हाईएस्ट हैं, और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में बच्चों ने 97 तक मार्क्स लिए हैं। मेरे पास लैंग्वेजेस में ऐसा है कि जिसमें बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 भी लिए, 99 भी लिए हैं, 98 भी लिए हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझती हूँ कि ये सक्सेस बच्चों की जो है, ये विद्यालय की है, ये मेरे टीचर्स की सक्सेस है, ये क्रेडिट मेरी टीम को जाता है। और हमारा तो ये मिशन है कि अगर आज के इस दौर में हम बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा दे सकें, उनको अपने व्यक्तिगत स्वरूप में लाके उनको आत्मनिर्भर बना सकें, वो किसी मुकाम पर पहुंच सकें, तो उससे ज्यादा खुशी एक जो दिल से अध्यापक अपने आप को समझता है, जैसे माई सेल्फ इज ऑल्सो फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट आई एम अ टीचर बेसिकली, एंड that is, I consider it the greatest achievement and that gives immense happiness. मैडम, जैसे आपका कहना है कि दिस इज ग्रेट अचीवमेंट, जैसे आपके चेहरे से ही खुशी में लग रहा है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हमारे मीडिया की तरफ से भी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। एक जानकारी मैं जरूर लेना चाह रहा था, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में और कल के न्यूज़पेपर में देखने को मिला कि मोस्टली जो गर्ल स्टूडेंट है वो ज्यादा अचीव कर रही हैं, और क्या रेशो रही है आपके स्कूल की अचीवमेंट के रिगार्डिंग? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मेरे स्कूल में भी जो मैक्सिमम 99% तो मेरी बच्चियों ने अच्छे नंबर लिए हैं और मुझे उस चीज का भी बड़ा गर्व है, क्योंकि एक सशक्त नारी का स्वरूप जो है उसके लिए उनमें वो आत्मविश्वास जब अपनी उत्तीर्ण होने पर अपने परिणाम को देखकर आता है और उनका उत्साह बढ़ता है, उसकी जैसी कोई चीज नहीं। उसके साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि बच्चे सब बराबर होते हैं, पर एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है कि लड़कों ने क्यों नहीं अच्छा अचीव किया। ये हमारे पूरे समाज के सामने ये एक प्रश्न चिन्ह है। उसके लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि वो भी हमारी धरोहर है, उनको संभालने का प्रयास हमें मिलके करना है। उसमें पेरेंट्स और स्कूल दोनों का योगदान है। तो अगर बच्चे कहीं पर भी लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो जब सही समय पे सही बात से उनका मार्गदर्शन करके हमें करना। लेकिन ये नहीं कि मेरे बच्चे जो बॉयज थे वो उत्तीर्ण नहीं हुए। हाँ, उन्होंने कंपैरेटिवली मार्क्स कम लिए, जिसमें 10th की अगर मैं बात करूं कि मेरे मैक्सिमम बच्चे अप टू 80%, 85, 92, 95% तक आए। उसमें मेरा एक इकलौता बेटा उसमें आया। अगर वो संख्या भी बढ़े तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैडम, ये तो जैसे रिजल्टों के बारे में बात हो गई, वैसे भी जैसे देखा गया कि बंगा में इस वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ बंगा एरिया, और दूर दूर से भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अगर मैं बात करूँ पूरे जिले से भी आते हैं और जिले के बाहर से भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और पेरेंट्स देखते हैं और उनको खुशी होती है जहाँ पे बच्चा उनका पढ़ रहा है। तो क्या फीचर है, क्या कारण है ये स्कूल की अचीवमेंट के लिए? इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बच्चों को जो स्कूल के अंदर एटमॉस्फेयर मिल रहा है वो बहुत ही सिक्योर और उनके कंफर्ट लेवल को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी, मेरा स्कूल फुली एयर कंडीशन है, प्लेवे से लेके क्लास 12th तक। और फिर जो ट्रांसपोर्ट का फीचर है हमारा, आसपास 22 किलोमीटर के एरिया में मेरी बसेस जाती हैं, जो स्कूल की अपनी बसेस हैं, और हमारा अपना स्टाफ है, ड्राइवर, हेल्पर्स, मेड्स। उससे पेरेंट्स को एक फेथ है कि बच्चा सिक्योर है। स्कूल की एंट्री गेट जो मेरे रिसेप्शन के एडजेसेंट गेट है, वहां पे मेरा बच्चा बस से उतरता है और सीधा क्लासरूम में जाता है। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, उनको बसेस में चढ़ने के लिए भी दूर तक बैग उठा के जाना नहीं पड़ता। और उसके अलावा हमारा बच्चों को एकेडमिक्स में हम इंडिविजुअल अटेंशन, डे टू डे रिपोर्टिंग टू द पेरेंट्स। बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो भी पेरेंट को बताया जाता है। जो बच्चा अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा और स्लो है, उसकी रिपोर्टिंग भी पेरेंट्स को दी जाती है, ताकि पेरेंट्स को उसका पता चले कि मेरे बच्चे का लेवल क्या है, और धीरे धीरे उस बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देके उसको इम्प्रूव कराया जाए। मैडम, ये तो बात हो गई है जैसे कि सर्विसेज जो दे रहे हैं और पेरेंट्स हाँ जो सहूलतें आप बच्चों को दे रहे हैं, और इसमें जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें क्या क्या है अपना? हाँ जी, देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मेरा रेगुलर फीचर है म्यूजिक, डांस, कराटे। इन सब की जो प्रावधान है वो हमारी टाइम टेबल में ही है। उसके अलावा सबसे बड़ा फीचर हमने पिछले साल ऐड किया है कि मेरा स्कूल जो है ये सर्टिफाई हो चुका है क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी से, जो मोहाली से नेटिव है। और ऑनरेबल डीसी साहब, he came and he inaugurated the cricket academy, and this is the regular feature. The person comes from the academy to train my students, and girls and boys both. And in future I can foresee that my girls or my boys of my students, they will be part of the district team and state team of cricket. And one day, yes, let's dream high that they can go for the national team as well. They are being given training regularly for 1 hour, and the coach comes from the academy itself.
and we are not charging anything from any student from that. This provision is from the school side. मैडम, हमारे चैनल से आप बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे कि आपने स्कूल के फीचर्स के बारे में बताया और रिजल्टों में भी आपके स्टूडेंट ने अच्छी अचीवमेंट करी है, इसलिए हमारे मीडिया की तरफ से भी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है। ये थे मैडम नीना भारद्वाज जी, जिन्होंने स्कूल की हर चीज, हर अचीवमेंट में बारे में बताया और उनके फीचर्स के बारे में बताया। और इनका कहना है कि इस स्कूल में जो सहूलतें मिल रही हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेटर है। और जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है कि जो आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और इनकी बसें हैं जो बहुत सेफ हैं और जो उनको उतारती हैं बिल्कुल क्लासरूम के नज़दीक उतारती हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में भी इनका स्कूल में हर तरह की फैसिलिटी है। मैं मनजिंदर सिंह अपने साथी अमित के नाल, तुसीं देखते रहो पंजाब 7 TV।